So yes, we are going to discuss again a question based on the total probability that will give you the clear cut idea about the concept of total probability, and a simple question but interesting one. Recently elections were held, so we discuss a question based on that. So there is a position of MP, member of parliament, right? And there are three candidates there who are contesting for the position of MP. There are three candidates there, right? A, B and C. Probability of A being elected, let's say it is given as 0.4. Probability of B being elected is 0.3 and probability of C being elected. यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, whenever we discuss the concept of total probability, the events must be mutually exclusive as well as exhaustive. So P of A is been given as 0.4, second candidate elected probability अब नहीं कर रहे यार. So we'll be starting our discussion with a homogeneous system of equation which is x plus 3y minus 2z equals to 0, 2x minus y plus 4z equals to 0 and x minus 11y plus 14z equals to 0. यूजिंग मैट्रिक्स वी हैव टू सॉल्व. सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. इट इज 1 3 minus 2, 2 minus 1 4, 1 minus 11 and 14, 3 by 3 matrix. It is here x y z and 0 0 0. Homogeneous system of equation, all the constants are equals to 0, that must be equals to 0. So Ax equals to B. As we are aware of, when we solve this matrix equation, x is going to be equals to adjoint of A into B divided by determinant of A. Determinant of A. So you are going to calculate the value of the determinant here. Determinant की value आप calculate कर लेंगे. And that determinant is 1 3 minus 2, 2 minus 1 4, 1 minus 11 and 14. What value you are getting for the determinant? Okay, if you are getting it 0 0 0 अगर आ जाता है determinant की value 0 आती है, you are going to say it's a trivial or non trivial. Confuse मत हो यार. Trivial solution से मतलब होता है determinant is not equals to 0 where x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0. Determinant is coming as 0, that means it is going to give you the non trivial solution. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मतलब ये हुआ कि ट्रिवियल दैट मीन्स x 0 y 0 z 0 यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, लेकिन इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यू आर गोइंग टू राइट ट्रिवियल सॉल्यूशन देयर. So it is non-trivial solution which is going to represent infinitely many solutions there. Infinitely many, in the previous class also explained that three unknowns are there, and finally when you form these equations you will be getting two equations, three unknowns. So you are going to get infinitely many solutions like that we have discussed. We have discussed using the elimination method, we have also discussed using the matrix method, if you remember that, right? So यहाँ पर जब आप उसको देखते हैं तो यू कैन टेक मैट्रिक्स मेथड से. अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, एलिमिनेशन मेथड क्या बताया था मैंने आपको? एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग बताया था कि फाइंड आउट एनी एक्स वाई जेड, एनी वन ऑफ द थ्री. एक्स को फाइंड आउट कर लो इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड और उसको दूसरी दो इक्वेशंस में पुट कर दें आप, यू विल बी गेटिंग द सेम इक्वेशंस. एक्स को फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड और उसको दूसरी दो इक्वेशंस में रख दें, यू विल बी गेटिंग द सेम इक्वेशंस. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं ना. और मैट्रिक्स मेथड से मैंने आपको डिस्कस किया था कि टेक z इक्वल्स टू सम k, so it will be x plus 3y equals to 2k and 2x minus y is equals to minus of 4k. एंड अगेन इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दिया. मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में जब आपने अरेंज किया 1 3 2 minus 1 x y 2k and minus 4k. ये x equals to b that we have represented here, right?
टू सॉल्व दैट इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना होगा मुझे, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है. दैट मीन्स इफ आई राइट इट लाइक ax इक्वल्स टू b, तो x हो गया ऑलरेडी. लेट्स टेक इट cx इक्वल्स टू d. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो फॉर द प्री मल्टीप्लीकेशन बाय सी इनवर्स. सी इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप. सी इनवर्स इज व्हाट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 1 3 2 -1. 1 3 2 -1 के इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट x यू विल बी गेटिंग एज. So anybody has solved the inverse of that 1 3 2 -1 का inverse अगर आप चेक करेंगे, as far as value of the determinant is concerned, it will be -1 -6 -7. That will be the value of the determinant. That x is nothing but x y, this matrix there. और 1 3 2 -1 का आप क्या लेने वाले हैं, you are going to take the cofactor and transpose of that, that will be adjoint. So for this one directly we are going to write the adjoint now. For 1 this is -1, for this 3 it is -2. Already we are directly writing the transpose matrix. For this 2 it is -3 plus 1 multiplied to 2k minus of 4k, right? Now we are going to go for the row column multiplication there and divide it by the value of the determinant which is coming as -7, and you will be getting the value of x and y, and you will be getting the value of x and y in terms of k. x और y की वैल्यूज आ जाएंगी in terms of k. In fact in board exams अगर ये कहीं बात आती है तो I think you should solve it using the matrix only, so that you will be getting the full marks. Elimination method का भी क्यों use करें? If you are having the idea of about the matrix method, directly go for that. एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज कंसर्न, वो तो आप किसी भी टाइप से कर देना, आप मैट्रिक्स से करें या डिटर्मिनेंट से करें या ऑब्जर्वेशन से करें या तुक्केबाजी से करें, मतलब जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, सही होना चाहिए. तो ठीक है, एनीबडी कैन टेल मी आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स इज इक्वल टू -10k/7. प्लीज यू विल हैव टू वेरीफाई दैट. वाई इज 8k/7. ओके. If it is the value, if these are the values of x and y, you will have to verify here. X की value -10k/7, y की value 8k/7, z equals to k, and these must be satisfying the third equation. ये तो तय बात है कि x y z की जो values हैं तीसरी equation को जरूर satisfy करेगी. That's how you are going to solve the homogeneous system of equation when non-trivial solutions are there. चेक कर लीजिए, satisfy करना चाहिए. So we will be discussing a new concept that is mainly for the board exam purpose, that is using elementary row operation. How can we find out inverse of a matrix? Inverse of a matrix we have discussed, that is nothing but adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint calculate करके determinant से divide करते you will be getting inverse, that's fine. But one more approach is there, and that is using elementary row operations. एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, और उन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, इफ इट इज गिवन इन द एग्जाम यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यू विल हैव टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ओनली. रो में कॉलम मिक्स नहीं करते, कॉलम में रो मिक्स नहीं किया जाता. यूजुअली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स. क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करते हुए इफ यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स, इन दैट केस प्लीज डू नॉट यूज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स देयर. ये ध्यान रखिएगा कि यार इनवर्स ही तो है, ऐसे नहीं तो ऐसे आ गया, वो गलत होगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इफ यू आर सॉल्विंग इट यूजिंग एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. सो इफ इट इज बीन आस्क्ड यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, प्लीज डू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ओनली. हाँ, इफ इट इज नॉट, जैसे मान लीजिए जो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जहां पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करनी होगी, उस केस में ये ध्यान रखिएगा, उस केस में इक्वेशंस बना के जब आप सॉल्व करेंगे उसमें लिखा नहीं होगा यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन. इट इज सजेस्टेड दैट प्लीज गो ओनली फॉर एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. देन इन दैट केस प्लीज डू नॉट ट्राई फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस देन, because sometimes it becomes too lengthy to solve using elementary row operations.
तो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं हो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करते हुए आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, तब तक उसको अटेम्प्ट मत कीजिए उस डायरेक्शन में। समझ रहे हैं ना? जब अगर लिखा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो करना ही है, फिर एडजॉइंट मत लगाइएगा, जीरो मिलेंगे, वो टाइम किल करने वाली बात होगी, मत करिएगा उसको कि चलो इन रिजल्ट देख के कुछ नंबर मिल जाएंगे, कुछ नहीं, जीरो मिलेगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बेस्ट साधारण सी बात है, देखिएगा क्या है, क्या होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ पाते, लेकिन हमें पता होना चाहिए व्हाट आर दोज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, होते क्या हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन एनी मैनर। देखिएगा, आई विल बी टेकिंग सम एग्जांपल एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड देन विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दोज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू सॉल्व द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिएगा, so there is a matrix A matrix. I am taking a 3 by 3 matrix here. 1 3 2 2 minus 1 0 0 4 minus 2. That's a square matrix. There are three elementary row operations. Elementary row operations we are discussing. So elementary row operations, three elementary row operations are there. One is of the interchange of any rows. जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और जब मैं elementary row operations कह रहा हूँ तो फिर कॉलम मिक्स नहीं किया था उसमें. Interchange of any two rows, like R1, R3. R1 R3 को इंटरचेंज किया. डेफिनेटली अगर मैं, आप ये जानते हैं कि एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स के चेंज हुए तो दैट इज गोइंग टू बी ए न्यू मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में तो हम जब रोज कॉलम भी इंटरचेंज करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी ए न्यू मैट्रिक्स विच इज नोन टू बी द ट्रांसपोज मैट्रिक्स. वो तो डिफरेंट मैट्रिक्स होता है. यहाँ R1 R3 को अगर मैंने इंटरचेंज किया तो इट इज नोन टू बी, जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू ए. मान लीजिए जो नया मैट्रिक्स बनता है आफ्टर interchanging the rows 0 4 minus 2 2 minus 1 0 and 1 3 2, it is going to be equivalent. That's a new matrix. After interchanging the rows R1 R3 को जब आपने interchange किया तो that will become a new matrix. और new matrix जो बना है, let's say that matrix is B and you are going to say A is equivalent to B. A is equivalent to B. The second elementary row operation, this is the first, interchange of any two rows. Interchange of any two rows. Second elementary row operation is about, let's say R2 is there and we are going to go for multiplication by 2R2. Multiplication by some scalar. किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना किसी भी रो को, R1 R2 R3. स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव 2 1 by 2 कुछ भी हो सकता है. अगेन दैट इज गोइंग टू बी ए न्यू मैट्रिक्स. भाई आप किसी भी मैट्रिक्स कि रो नंबर 2 में आपको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे. दैट इज गोइंग टू बी अ न्यू मैट्रिक्स एंड अगेन इट इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. 1 3 2 एज इट इज, मैं उसी में चेंज कर रहा हूं. इन द गिवन मैट्रिक्स ए में ही चेंज कर रहा हूं, राइट. 4 minus 2 0 0 4 minus 2 as it is. And the third elementary row operation is R3 plus R1. जैसा हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय भी जो कर रहे थे एलिमेंट्री रो, सॉरी नॉट एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, तो वही R3 प्लस R1 या R3 प्लस 2 R1. चलिए R3 प्लस ऐसा लिख देता हूँ सो दैट यू विल बी गेटिंग R3 माइनस 2 R1. दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ न्यू मैट्रिक्स. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा. R3 माइनस 2 R1, तो R3 एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 2 विल रिमेन सेम, 2 minus 1 0. Elements of row number 1 remains as it is, 1 3 2, and R3 minus 2 R1 अगर मैं लिख रहा हूँ तो minus 2 R1
ये -2, -6, -4 है ना, तो इट इज गोइंग टू बी 0 माइनस ऑफ 2, -2, this is 4, this is -6, 4 -6, -2, this is -2 and -4, -6. In fact, these are the three elementary row operations. अब elementary row operations क्या है? Three elementary row operations are there. First one is about interchange of any rows, any two rows. Rows का interchange. Multiplication by scalar to any one of the rows. Scalar से multiplication. And Ri plus Krj, K is some scalar value. These are the three elementary row operations. जैसे तीन elementary row operations है, likewise there are three elementary column operations are there. Interchange of any two columns, multiplication of any scalar to any column, and Ci plus Kcj, C1 plus 2, C2, C1 minus 2, C2 like that. But at the same time, it is advised that whenever elementary row operations has been written, प्लीज डू नॉट अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. दोनों को साथ में अप्लाई मत कीजिएगा. एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहा गया है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, दीज आर द थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, उन्हीं का यूज करिएगा टू फाइंड आउट द इनवर्स. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस? विल बी डिस्कसिंग दैट. बिफोर ऑफ दैट जस्ट नोट डाउन. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द इनवर्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. देखिएगा क्या प्रोसीजर है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स की बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो पाएगी. वी आर गोइंग टू राइट A equals to IA, कैन बी रिटन A equals to IA, दैट्स द मैट्रिक्स गिवन टू यू. अभी हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स A. We are going to apply series or sequence of elementary row operations on matrix A, and our target is to reduce matrix A into a unit matrix using, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, our target is to apply series or sequence of elementary row operations on the matrix A so that we can reduce the given matrix A matrix into a unit matrix. So that हम उसे एक यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे. एंड एट द सेम टाइम ऑल द सेम सेट ऑफ सीक्वेंस वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस यूनिट मैट्रिक्स. द सेम सेट ऑफ सीक्वेंस जो हमने ए मैट्रिक्स पे अप्लाई किया है, द सेम सेट ऑफ सीक्वेंस वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन मैट्रिक्स आई, यूनिट मैट्रिक्स. एंड फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जिस स्टेप पर आप यूनिट मैट्रिक्स को मिलेगा आपको, लेट्स से देयर आर 4 स्टेप्स, 4 elementary row operations which you have applied there to reduce that A matrix into a unit matrix. The same set of sequence 4 row operations when you are applying on a unit matrix, you are going to get the inverse of that matrix. कहानी कुछ ऐसी है, देखिएगा. So हम क्या करेंगे? Our target is to reduce A matrix into a unit matrix. कैसे? We are going to apply सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस E1, E2, E3. ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए लिखा मैंने ऑन ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. और हमारा टारगेट क्या है? वी आर रिड्यूसिंग इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स. हम उसे यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर रहे हैं. तो जब यूनिट मैट्रिक्स में जिस स्टेप पे रिड्यूस कर लेंगे, तो हियर व्हेन यू विल बी गेटिंग द यूनिट मैट्रिक्स, तो सीधी सी बात है यूनिट मैट्रिक्स के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट it will become I and it will be A inverse. then भाई एक सीधी सी बात है कि when you are applying elementary row operation on that matrix A, you are reducing that matrix into I. तो अब जब same set of sequence when you applied on I, it will become a new matrix. Let's say that that's a B matrix. मान लीजिए there are 4 सेट ऑफ रो ऑपरेशंस जो आपने अप्लाई किया ए के ऊपर. अभी देखोगे समझोगे बहुत आसानी समझ में आएगा.
यू विल बी गेटिंग यूनिट मैट्रिक्स। तो भैया इस यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर आपने अप्लाई किया वो चारों रो ऑपरेशंस, यू विल बी गेटिंग अ न्यू मैट्रिक्स, लेट्स से दैट्स अ बी मैट्रिक्स। सो दैट बी इज व्हाट? दैट बी इज नथिंग बट A inverse. That B is nothing but the A inverse. देखिएगा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, विल बी टेकिंग सम 2 by 2 मैट्रिक्स और उसको हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बट अगेन आई एम सजेस्टिंग यू, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं हो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट। देखो बहुत सस्ता काम नहीं होता। वेन एवर इट इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, समटाइम दो स्टेप्स गो अप टू 8-9 स्टेप्स ऑल्सो। और एट द सेम टाइम इसमें दिक्कत ये है कि दो स्टेप्स, फर्स्ट यू विल हैव टू अप्लाई एन on A and simultaneously you will have to apply on that unit matrix। दो में अप्लाई करो ना, जिस स्टेप पे ये यूनिट में आएगा उस स्टेप पे इसका इनवर्स आएगा वो। तो वो केवल तभी करिएगा जब लिखा जाता है साफ साफ कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, अदरवाइज प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दैट। आई टेक मैट्रिक्स A मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स सिंपली दैट्स अ मैट्रिक्स A मैट्रिक्स 2 1 1 2। बहुत आसानी से सीखेंगे आप 2 by 2 मैट्रिक्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इनवर्स बट यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दैट इज आवर टारगेट। We are going to apply elementary row operations on the matrix A matrix, है ना। Our target is to reduce that matrix into a unit matrix, that means 1 0 0 1 ये हम चाहते हैं, 1 0 0 1 हम ये चाहते हैं। For that हमने क्या किया? What are the elementary row operations? 3 elementary row operations are there. Interchange of any 2 rows। अभी 2-3 सवाल देखोगे और you will be comfortable। शुरुआत में लगता है अजीब सा क्या क्या हो रहा है ये। Interchange of any 2 rows, multiplication of a scalar in any one of the rows, and third one r1 plus 2r2 in terms of r1 या ri plus krj। जो भी एलिमेंट जो रो ऑपरेशंस आपने डिटर्मिनेंट्स में सीखे द सेम इज एप्लीकेबल हियर। तो मैंने यहाँ पे 2 1 1 2 को देखा, यूजिंग दैट 1 आई विल बी मेकिंग 0 देयर, या इसको 0 बना लेते हैं, देखिएगा कैसे। 2 1 1 2 r2 R2 minus 2R1, the first elementary row operation। मैंने जो सोचा, बोले सर क्यों सोचा? So that I'll be making 0 here। मेरा टारगेट है क्या करना है, मुझे इसे यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। 1 0 0 1। सो 2 1 देखा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो I'll be getting 0 here। देखें जरा क्या होता है। So it is going to be R2 1 as it is, R2 minus 2R1, 4 हो गया, 1 minus 4 minus 3 2 0 R2 minus 2R1, तो R2 minus 2R1 बोलिए प्लीज, minus 2 1, it is A here, right। 2 1 minus 3 0, तो मेरा टारगेट है 1 0 0 1। अभी मैंने अप्लाई किया यहाँ पर 2 1 minus 3 0। सबसे पहली बात R2 हमने क्या था, सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन। इस -3 को देखते हुए हमने काम किया कि माइनस ऑफ 1/3 R2, बताया था ना मैंने, k टाइम्स आर आई। तो सेम आई एम डूइंग हियर। बोले सर क्यों? सो दैट मेकिंग इट 1 नॉट 0, इसको 0 नहीं बना पाएंगे 1। तो अगर ये दोनों एलिमेंट 0 बन गए, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज आप ये यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर ही नहीं पाओगे उस केस में। समझ में आई क्या बात? मान लीजिए दोनों 0 बन गए एलिमेंट, तब ये यूनिट मैट्रिक्स में कहाँ रिड्यूस हो पाएगा, राइट। तो वो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में उसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा होगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो है ना, दैट विल बिकम अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो माइनस ऑफ 1/R3, सो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 एज इट इज, -3 0 is equals to, but you will have to apply the same set of operation. So -1/3, 2/3, -1/3 and a there. It will become 1 बनेगा, -1 नहीं, -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा 1, राइट। अभी क्या करने का, अभी ये 2 1 1 0 कैसे सोचेंगे, ये अपने को ही सोचना है, इसमें रटी भी कोई अप्रोच नहीं रहेगी, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं होता। देन वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 आई एम गोइंग टू मेक दिस 0, R1 माइनस 2 R2, 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, 1 0, 2 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया, 0 1। बोले सर यूनिट मैट्रिक्स तो आया नहीं, कुछ अलग ही हो गया। R1 माइनस 2 R2, तो R2 तो एज इट इज है 2/3 माइनस ऑफ 1/3, राइट, एंड R1 माइनस 2 R2, प्लीज 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3, दिस इज 0 प्लस 2/3, 2/3, ओके। देखो इसमें नंबरिंग करते हुए चलें, बढ़िया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, व्हाट डू यू फील, क्या किया जाए, फोर्थ अब इधर लिख रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। फोर्थ वन यूनिट मैट्रिक्स में लाना है, R1 R2 का इंटरचेंज, 1 0 0 1, that will be equals to 2/3 minus of 1/3 minus of 1/3 and 2/3. The point is, फोर्थ स्टेप में, फोर्थ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में जो गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस हुआ है। सेम सेट ऑफ रो ऑपरेशंस आपने अप्लाई किए हैं यूनिट मैट्रिक्स पे, और फोर्थ स्टेप पर ये जो मैट्रिक्स आया है दैट इज नथिंग बट द इनवर्स, ये ए इनवर्स होगा। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सादा सा सिंपल सा काम था, और यहाँ पे ये। इसमें एक और एडवाइस करता हूं मैं आपको, ये तो पहला सवाल था, इसमें क्या करिएगा कि पहला टास्क ये करिएगा कि जो गिवन मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें तो टिपिकल टास्क है, 4 लगा है, 4 इधर भी लगाना पड़े, लगाना ही पड़ेंगे। आप क्या करिएगा, पहले आप ए मैट्रिक्स को लेना और उस ए मैट्रिक्स को लेते हुए उसको यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लेना, रफ वर्क में जो करके देखना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, खास करके क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स की कैटेगरी में ये सवाल आता है। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब तक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस नहीं पूछा जाए प्लीज़ मत लगाइएगा, क्योंकि कई बार मैंने भी कॉपीज़ वगैरह चेक करता हूँ, मतलब बहुत परेशानी सी होती है कि जब सिंपल सा सवाल है एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना, उसको भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से घिस रखा है, बनता तो है नहीं, फिर वो जो एडजॉइंट नहीं बना पाएगा वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कब बना लेगा, तो बड़ा मुश्किल सा कार्यक्रम है। पॉइंट इज, पहले रफ वर्क में जो गिवन मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स में ला के रख लेना, यार देखना कितनी स्टेप्स लग रही है और वो स्टेप्स के नंबरिंग करते हुए चलना, क्योंकि नंबरिंग से बात समझ रहे हो, क्योंकि आपने जरा सा इधर उधर किया तो गलत मैट्रिक्स आ जाएगा। और एक बार लगा कि हाँ यार ये आ गया इनवर्स मैट्रिक्स, अपन ने यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लिया है 4 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में, 7 स्टेप्स में, फिर उसके बाद आप उसको लिखना सो दैट आप उसको यूनिट मैट्रिक्स में अप्लाई करो। मान लो आपने, सुनो हुआ क्या, आपने मेहनत करी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इधर भी लगा रहे हो इधर भी लगा रहे हो इधर भी लगा रहे हो इधर भी लगा रहे हो, आ ही नहीं रहा, टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, नहीं समझे। तो पहले आप ए मैट्रिक्स में काम करके देखिएगा कि यार इसको यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लें, और उसके बाद में जब लग गया कि हाँ यार ओके 4th स्टेप 5th स्टेप में आ रहा है, फिर आप सेम सेट ऑफ सीक्वेंस इधर लगा दीजिएगा। We'll be discussing some more question, that is the first of its type. Elementary row operations, 3 elementary row operations are there. One is about interchange of any 2 rows.
Second one is multiplication of any scalar to any one of the rows, and third one is Ri and Ri plus Krj, R1 plus 2R2, R1 minus 2R2, R2 minus 3R1, like that. Again we take a 2 by 2 matrix, then 5, 3, 1, 4, and you have to find out the inverse of that matrix using elementary row operation, not using adjoint divided by the determinant. So 5, 3, 1, 4 is the matrix which is given to you, and inverse find out करना है आपको यहाँ पर. Procedure is clear. A equals to IA. राइट. अब जैसे मैंने आपको जो सजेस्ट किया था उस बात को मैं करके बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए. फिर आपको एग्जाम में लिखना है तो दोनों को लिखना पड़ेगा बिल्कुल साथ साथ, वो बात अलग है. बट रफ वर्क में आप क्या कर सकते हैं, जैसे 5, 3, 1, 4 इज देयर. आपका टारगेट है यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है इसको. तो यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 1 रो इंटरचेंज इज परमिसिबल. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस 1. इस 1 की हेल्प लेंगे और इस 1 की हेल्प से 5 को 0 बना लीजिए, जो आपके दिमाग में आना चाहिए. और हो सकता है सबके दिमाग में अलग अलग बात चले, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि यार इस 1 की हेल्प से सबसे पहले इसको 5 को 0 बना लें. दैट मीन्स R1 एंड R1 माइनस 5R2. तो R1 माइनस 5R2 किया आपने, ठीक. सो इट विल बिकम 5 माइनस 5, दैट विल बी 0, और 3 माइनस 20 माइनस 17 1 4. और अपन यहाँ पे नंबरिंग भी डाल लेते हैं सो दैट हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि हम इंटरचेंज नहीं कर दें कहीं कुछ कि यार 1 2 3 4 का 1 4 2 3 1 हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि रफ वर्क में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसी एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो नंबरिंग कर दीजिएगा. द सेकेंड स्टेप जो अब समझ में आने लगा आपको, ये माइनस 17 है, मेक इट 1. दैट मीन्स R1 और R1 में माइनस ऑफ 1 बाय 17 R1, 0 1 1 4. राइट. अब क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, ये 1 है, इस 1 को लेते हुए इस 4 को 0 बना लें. इधर तो ऑलरेडी 0 बन गया, बेस्ट है. इस 1 को लेते हुए इस 4 को 0 बना लें. दैट मीन्स R2 एंड R2 माइनस 4R1. यस, सभी लोग समझने लगेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इट इज जब तक 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो आसानी से, लेकिन उससे हम क्लैरिटी आ जाएगी कि कर क्या 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 कर सकते हैं. 0 1 एज इट इज, 1 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 0 1 1 0. बट वी वांट ए यूनिट मैट्रिक्स, सो फोर्थ स्टेप इज अगेन रिक्वायर्ड, विच इज इंटरचेंज ऑफ 2 रोज. 1 0 0. These are the 4 steps. अब आपको क्या करना है, अभी समझ में आ गया कि ओके हम यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बेस्ट स्टेप इसको फास्ट पेस पे इधर कर देंगे. यहाँ पे एक तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं हम. द सेम सीक्वेंस यू आर अप्लाइंग ऑन द यूनिट मैट्रिक्स. और फोर्थ स्टेप में यू विल बी गेटिंग द इनवर्स मैट्रिक्स. कर पाएंगे आप. द फर्स्ट स्टेप R1 minus 5R2 applying on a unit matrix. Then second step R1 minus of R1 और R1 में minus of 1 by 17 R1. थर्ड स्टेप में R2 minus 4 R1. फोर्थ स्टेप में R1 R2 का इंटरचेंज. राइट. कैन यू टेल मी द इनवर्स मैट्रिक्स. यहाँ पे जो अगर ये चारों ऑपरेशंस अगर आपने लगाए हैं, इनवर्स, व्हाट दैट इनवर्स यू आर गेटिंग हियर. चलिए जस्ट डू इट. चारों को लगा लीजिए, प्रॉपर्ली लगा लीजिए, देन विल बी राइटिंग द रिजल्ट. Now again a 2 by 2 matrix is there, 10 minus 2 minus 5 minus 1, and we have to find out the inverse using elementary row operations. अभी हम बात समझ चुके हैं कि करना क्या है हमें. A equals to IA, we are going to apply elementary row operations on square matrix A, reduce to that square matrix into a unit matrix, and same set of sequence you are going to apply on the unit matrix to find out the inverse. तो डायरेक्टली अगर हम बात करें कि हाउ मेनी स्टेप्स वी कैन रिड्यूस इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स.
और एक और बात यह कि इसमें सब लोग जो भी सोचेंगे सबकी अप्रोच अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच होगी, है ना। किसी का हो सकता है 4 स्टेप्स में आता है, किसी का 5 स्टेप्स में आए, तो उससे परेशानी नहीं है, आपको अपने लेवल पे सोचना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 - 2 - 5 - 1, इफ आई टेक द हेल्प ऑफ दिस -5 की हेल्प से इधर 0 बनाने का प्लान करते हैं, दैट मीन्स R1 एंड R1 प्लस 2R2, ठीक है ना। So you are going to get a new matrix -5 or -1 as it is. It is R1 plus 2R2, so 10 - 10 that will be 0, -2, ठीक, it will become -2 and -4. Then R1 minus of 1/4, R1 that is nothing but 0, 1, -5 - 1. नंबरिंग जरूर करते हुए चलें सो दैट हम जब इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। द थर्ड स्टेप विच वी आर थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इज 0, 1, -5 - 1. विद द हेल्प ऑफ दिस 1 वी आर गोइंग टू मेक 0 हियर। भाई एक 0 इधर बना लिया, अभी 0 हो गया, दिक्कत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस 1 वी आर गोइंग टू मेक 0 हियर, दैट मीन्स R2 and R2 plus R1, 0, 1, -5 and -1 plus 1, 0. The fourth step is R2 and minus of 1/5, R2, ठीक, ये 1 0 बन जाएगा इधर पे। और फिफ्थ स्टेप में हमने कहा कि इंटरचेंज ऑफ रोज R1 R2। अब पहले आप ये करके देख लीजिए सो दैट आपको पता लग जाएगा हाँ यार हम यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज फालतू क्यों मेहनत करेंगे आप यूनिट मैट्रिक्स के लिए। वंस इट इज क्लियर, ओके, नाउ यू कैन अप्लाई दैट इन द फेयर वर्क, है ना, उसमें आप डायरेक्टली यूनिट मैट्रिक्स पे काम कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 2/2 में तो इट इज गोइंग टू बी समवॉट इजी टास्क, 3/3 में कुछ और सोचना होगा, एंड देयर आर गोइंग टू बी 7, 8, 9 स्टेप्स कुड बी देयर इन 3/3 मैट्रिक्स टू। बट इन क्वेश्चंस के थ्रू आर यू एबल टू फाइंड गेट द आइडिया अबाउट द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का आइडिया तो मिल गया आपको। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्केलर इन एनी वन ऑफ द रोज, एंड जो नॉर्मल रो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते थे डिटर्मिनेंट में, सेम वी कैन परफॉर्म हियर आल्सो, ठीक। नाउ वी टेक अ 3/3 मैट्रिक्स हियर एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट अगेन। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग फॉर दिस मैट्रिक्स डायरेक्टली, वी आर अप्लाइंग दिस। करना क्या होगा हमें, A equals to IA, sequence of elementary row operations applied on the A, same set of sequence of elementary row operation applied on the I, जिस स्टेप पर ये यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस होगा उसी स्टेप पर ये इनवर्स मैट्रिक्स में रिड्यूस होगा, ये तो क्लियर है आपको। बट फर्स्ट वी आर सॉल्विंग फॉर A मैट्रिक्स ओनली, और इसी में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करते हुए हम उसे यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखिएगा जो दिमाग में आता है अपने को, वी हैव टेकन दिस 1, इस 1 को ऑब्जर्व किया, देख लीजिएगा एक बार बोर्ड पे, क्योंकि आपने जो सोचा हो सकता है मेरी अप्रोच उससे डिफरेंट हो, तो एक बार देख लें अपन कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, आप भी, क्योंकि इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। इस 1 को लेते हुए, इस जहाँ 1 दिखा मैंने कहा ये दैट इज अ क्लू, क्योंकि 1 को लेते हुए मैं इधर ये दिस इज 3 देयर एंड दिस इज 3 देयर, इन दोनों को 0 बना लेते हैं हम। दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, R1 and R1 minus 3R2 as well as R3 and R3 minus 3R2। बोले सर ये एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रो नंबर 2 को तो मैंने अनचेंज रखा है,
और R1 और R3 को चेंज किया है, कर सकते हैं। नंबरिंग ये ऊपर नीचे भी हो जाएगी तो परेशानी नहीं है यहाँ पर, बट ठीक है हमने नंबरिंग कर लिया है यहाँ पर। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वी वुड बी गेटिंग देयर -5 3 1 एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट 0, 3 से मल्टीप्लाई एंड देन सब्ट्रैक्ट -10, 3 से मल्टीप्लाई एंड देन सब्ट्रैक्ट -15 और 2 माइनस ओके इट विल बिकम 15 17, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा प्लीज। एंड R3 माइनस 3R2, 3 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 सब्ट्रैक्ट किया 2 माइनस 9 -7 -3 और 15 कितना हो जाएगा 12। दो जीरोस तो हमने बना लिए, लेकिन अभी भी काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना। इट इज 17 माइनस 10 0 -5 3 1 12 -7 0। अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कहीं कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने पे कुछ बात हो जाएगी, ऐसा नहीं। अच्छा, हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जीरो, ये जो जीरोस जो बनाए इनको लूज करें, क्योंकि ये तो जीरो हमने बनाए। सो व्हाट कैन बी डन देन, देखो थोड़ी सी टिपिकल सी स्टेप्स होंगी, होने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं उसमें, विद द हेल्प ऑफ दिस -5, कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, होने दीजिए। विद द हेल्प ऑफ दिस -5 विल बी मेकिंग दिस 17 एज वेल एज 12 एज 0। बोले सर कैसे कैसे, क्यों नहीं। थर्ड स्टेप, अच्छा -5 को नहीं, क्योंकि ये 0 डिस्टर्ब होगा उस केस में, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 17 या 12 विल मेक दिस 0, इसको 0 बनाते हैं। क्या करना चाहिए ताकि 0 बन जाए, लेट्स से R2 एंड R2 माइनस ऑफ या प्लस ऑफ, क्या करना चाहिए सो दैट यू विल बी गेटिंग 0 देयर। यू कैन थिंक ऑफ दैट, ये -5 है, ठीक है ना, तो -5 + 5 होगा तो बात बनेगी अपने को। तो R1 + 5/12, अब वो कॉम्प्लिकेटेड सा होगा 5/12 R3, 5/12 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। कैसे क्या सोचा, रटना का कुछ है नहीं, इसी को देखते हुए सोचना है आपको। बोले सर डिफिकल्ट होगा, क्या डिफिकल्ट होगा, करना ही पड़ेगा। तो R2 + 5/12 R3, सो दैट विल बी गेटिंग दिस 0। चलिए देखते, दिस इज 17 -10 0, दिस इज 12 -7 0। 5/12 किया है तो 5/12 किया है तो इट विल बिकम 0 देयर। और R2, अब जरा प्लीज मुझे बताइएगा, 3 माइनस ऑफ 35/12, व्हाट इज दैट। 3 माइनस ऑफ 35/12, व्हाट इज दैट। अरे R2 + 5/12 R3 करने पर व्हाट यू आर गेटिंग प्लीज, 1/12, ओके। एंड देन 1, ठीक। देन व्हाट, काम तो करना पड़ेगा हमें, कर रहे हैं, टिपिकल हो रहा है, होने दीजिए। ये 2 जीरोस है यहाँ पर, 0 डिस्टर्ब भी तो नहीं करना है मुझे, क्योंकि 0 बना है बड़ी मुश्किल से और वापस 0 खत्म कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो 17 - 10, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा। ये -10 है, यहाँ -7 है, 17 12। फोर्थ स्टेप, R1 माइनस ऑफ, ये -10 है, +10 होगा तो वो 0 बनेगा। अब ये +10 कब बनेगा, R1 माइनस ऑफ 10/7 R3। अजीब सा लग रहा है,
रटने का तो है ही नहीं ना कुछ भी यहाँ पर. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो ये 10/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, इट विल बी 10, और यहाँ पे ऐड होगा तो इट विल बिकम 0. ये सारी मेहनत ही हम उसी लिए कर रहे हैं. So it is 0, 1/12, 1, R3 as it is 12 minus 7, 0. Yes, minus 10/7 करने पर डेफिनेटली माइनस माइनस विल बी प्लस, और ये 10/7 तो 10, ये 0, यहाँ तो 0 है ऑलरेडी. एंड इट इज R1 माइनस ऑफ 10/7 R3. प्लीज मुझे रिजल्ट बता दीजिए. 17 माइनस ऑफ 120/7 प्लीज. प्लस नहीं कर पाएंगे आप लोग क्या? -1/7. ठीक है, अब लग रहा है स्कोप है कुछ. फिफ्थ स्टेप, एनीबडी? R1 एंड R1 में वी वांट 100 बन रहा है, अच्छा लग रहा है. माइनस ऑफ 7R1 मल्टीप्लीकेशन बाय -7, so that will be getting 100. क्या हो गया? अच्छा नहीं लगता है सब, है ना? 100 0 0 1/12 1, 12 minus 7 0. The sixth step is going to be, मले भाई, with the help of this 1 we are going to make this 12 0. इस 1 को पकड़ के इसको 12 को 0 बनाने का. So that means R3 12 R1 1 0 0 0 1/12 1, 12 minus 12 0, minus 7 as it is. ठीक. What you are planning now? R3 minus of 1/7 R3. अच्छा लगने लगा? राइट. With the help of this 1 we will be making this as 0, R2. वैसे इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि जब तक पूछा नहीं जाएगा आप कभी कोशिश नहीं करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करने का, एटलीस्ट जो लोग क्लास में मौजूद हैं. क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार वो 6 मार्क के क्वेश्चन में भी एलिमेंट्री रो, मतलब भयानक मूर्खता वाला कार्यक्रम, लेकिन करने कोशिश करते हैं वो. बट आई होप कि इस क्वेश्चन के बाद में शायद अटेम्प्ट शायद नहीं करेंगे, ऐसा माना जा सकता है. ये 4 मार्क्स की कैटेगरी में आएगा ये सवाल. इट इज गोइंग टू बी, आने वाला है तो 4 मार्क्स में आएगा ये आपकी सोच है. अगर आप सोच के जाते हैं कि आई हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स 60 मार्क्स, ऐसा 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आएगा ना बनेगा वो 5-6 स्टेप्स में, ऐसा नहीं है. और एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो क्यों नहीं बनेगा. देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन बनेगा वो. एग्जामिनर भी इस बात को ध्यान रखेगा कि 4 मार्क्स में देना है तो उसी के अकॉर्डिंग दिया जाए. आपने तो सीख लिया, अच्छी बात है ना, क्या परेशानी है. -1/12 in the 9th step, interchange of the rows, and those rows are R2 and R3. 1 0 0 0 1 0
0 0 1। दोस्तों अभी तो ये हमने यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस किया है। द सेम सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यू हैव टू अप्लाई ऑन यूनिट मैट्रिक्स। और ये जब 1/12 माइनस 10/7 जब परफॉर्म करोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। मतलब तो 9th स्टेप तक जाते जाते द इनवर्स जो मिलेगा आपको बेहद खुशी होगी। ये आपका मन है, छोड़ दें तो आप तो जितना छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, उसमें कौन बोले। हाँ अच्छा, यहाँ दैट इज फॉर योर होमवर्क डेफिनेटली। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट ऑन द बोर्ड, कभी नहीं, है ना। बट ये क्लियर है क्या? लेकिन इतनी सारी स्टेप्स के बाद में यू विल बी हैविंग अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। किस ढंग से परफॉर्म करना, वो एल्गोरिथम भी समझ में आया होगा आपको कि हम कर क्या रहे हैं, किस ढंग से प्लानिंग किया कि यार इस 1 को लेते हुए पहले हमने 2 जीरोस बनाए। डेफिनेटली आप सोचेंगे तो आप अलग कुछ सोच सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ठीक है, इस 1 को लेते हुए हमने ये 2 जीरोस बनाए, बट स्टिल अगेन यहाँ कहीं कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इवन ऑड फंसे हुए। तो फिर हमने क्या किया, R2 + 5/12 R3 करते हुए फिर इधर 0 बनाया। Then step by step all the steps are there in front of you and just think over that। क्योंकि हमने कोशिश करी कि जो जीरोस हमने बनाए उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया जाए। पता लगा एक बार 0 बनाया, दूसरी बार फिर हटा दिया, फिर बनाया फिर हटा दिया, तो फिर क्या मतलब। तो उस बात को भी ध्यान रखा हमने। Now again we have to use elementary row operations, and using elementary row operations we have to reduce the given matrix into a unit matrix, and the same set of sequence of row operations you are going to apply on a unit matrix to find out the inverse। तो inverse find out करना elementary row operation से, and at the same time it is very much suggested that elementary row operation has been asked, so please do not apply the column operation simultaneously। row operations कहा गया है, please apply row operations only। अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो जो समझ में आता है, जो जिस ढंग से आपको काम करना है वो ये है कि when you say that okay this is 1 2 -3, take this 1, और इस 1 की हेल्प से 2 0 तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखते हैं या दिखना चाहिए। दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट वन इज अबाउट R1 and R1 minus of R2, R1 minus of R2, and the second one R3 and R3 minus 2R2। This can be applied simultaneously। The reason is at the same time आपने R2 को डिस्टर्ब नहीं किया है, R1 और R3 के एलिमेंट्स में चेंज हुआ है, तो ये आप साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा आफ्टर अप्लाइंग दैट, क्योंकि मैं यहाँ पर साइमल्टेनियसली यूनिट मैट्रिक्स में तो परफॉर्म कर नहीं रहा हूँ, तो इट विल बिकम 1 2 -3 एज इट इज R1 minus R2, 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1, and 1 minus of -3 that is 4, R3 minus 2 R2, 2 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 0, 2 से मल्टीप्लाई किया -4, राइट, -2 that -4 -1 -5 would be there, right, and this is -3, so it will become 3 plus 2 into 3 that will be 6 9। चेक करिएगा प्लीज। अभी क्या करने का, ये 2 जीरोस हैं आपके सामने, अब इस ढंग से ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए सो दैट एटलीस्ट ये 2 जीरो तो डिस्टर्ब नहीं हो, हमें ये ध्यान रखना होगा। इंडिपेंडेंटली करिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे से हिंट देने की जरूरत क्या है, आप अपने दिमाग का यूज करो और अपने अकॉर्डिंग यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करो। उसने 5 में किया, आप 7 में करोगे, कर तो लोगे, वो ज्यादा जरूरी है। 0 - 1 4। अब क्या करेंगे हम, वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब दीज 2 जीरोस, तो वी आर प्लानिंग फॉर ओके अगेन वी कैन मेक 2 zeros हियर। कैसे 2 0 बना सकते हैं, देखो दोस्त, इस -1 की हेल्प से आई एम गोइंग टू राइट हियर R2 and R2 plus 2R1, and at the same time R3 and R3 minus of 5R1, right, R3 minus of 5R1,
So it is going to become 1 2 minus 3, then it is R2 plus 2 R1, sorry, so R2 R1 के एलिमेंट्स एज इट इज हैं 0 minus 1 4, R2 plus 2 R1, तो R2 plus 2 R1, this is 1 as it is, 2 से मल्टीप्लाई किया minus 2 plus 2 that will be 0, right, it is minus 3 as it is, and 2 into 4 8, minus 3 plus 8 5, this is 0, 5 plus 5 0, minus 20 plus 9 minus 11. I think clear है. Then you are planning for fifth step जो लिखने वाले हैं R3 minus 1 by 11 R3, so that will be getting 1 there. 0 0 1 हमारा टारगेट है कि भाई हमें यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. ठीक. Then again we can make 2 zeros with the help of this 1. इस 1 की हेल्प से फिर 2 0 बना सकते हैं. कैसे? R1 and R1 minus 4 R3 and R2 minus of 5 R3. ठीक. तो हमने R3 के एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया. 2 ऑलरेडी 0 0 1, इट इज 1 0 0 and then 0 minus 1 0, राइट. यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, काफी हद तक हम उसके नजदीक पहुंच गए. प्रीवियस वन से थोड़ा सा कम सोचना पड़ा. स्टेप्स तो लग रही हैं कि ठीक है. द 8th स्टेप इज गोइंग टू बी, और इसीलिए नंबरिंग करते हुए चलिएगा तो एरर के चांसेस नहीं रहेंगे. 0 minus 1 0, तो R1 में minus 1 R1 कर लेंगे अपन. सो इट विल बिकम 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1. और फिर दूसरे ढंग से भी सोच के देखिएगा. चलो दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच. फिर कुछ नया सोच के देखिएगा कि यार सर ये -3 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके कुछ प्लान करें. क्या करिएगा? हो सकता है उससे कम स्टेप्स लगे. तो इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है कार्यक्रम. जस्ट प्लान करो आप अपने अकॉर्डिंग. तो R1 माइनस ऑफ, और सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? 0 1 0, R1 और R2 का इंटरचेंज. you'll be getting 1 0 0 0 1 0 0 0 1. But yes, these many steps are required. That is about the finding out the inverse using elementary row operation, but it's a tedious one because the same set of sequence you are going to apply for the unit matrix, then only you are going to get the inverse. काफी लंबा कार्यक्रम है वो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दैट कंसेप्ट इज नॉट देयर इन योर CBSE एग्जाम्स एज वेल एज नॉट देयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. वो इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस इटसेल्फ. जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एक रिजल्ट है या एक थ्योरम है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. तो दैट इज नॉट देयर इन द, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं है. बट समटाइम्स ऐसा हुआ है एक्चुअल में, एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट वी आर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थ्योरम हियर, कि उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं जो रेगुलर अप्रोच से भी हो सकते हैं. लेकिन रेगुलर अप्रोच से वो हो सकता है कि 2 times 3 times टाइम लें, और इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम उस थ्योरम को यूज करते हैं तो रिलेटिवली ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए. दैट इज द ओनली रीजन दैट आई एम डिस्कसिंग दैट थ्योरम हियर. तो दैट थ्योरम इज नोन टू बी द केले-हैमिल्टन थ्योरम. उस थ्योरम का नाम है केले-हैमिल्टन थ्योरम.
एंड दैट इज नॉट देयर इन द सिलेबस. बोर्ड एग्जाम में तो भूल के भी मत सोचना इसको, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको क्लिक करेगा कि ओके इट हैज टू बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस. एंड आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ व्हाइल टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ आईआईटी इटसेल्फ. द रीजन इज देयर, आईआईटी का क्वेश्चन लेके ही मैं आपको इसको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इसको. देखिए थ्योरम बड़ा सिंपल सा है, और वो थ्योरम है दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation. Every square matrix satisfies its characteristic equation. हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, एंड व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो मैं आई विल टेक सम एग्जांपल और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. Let's say there is a matrix A matrix and I am taking a simple matrix of 2 by 2. It is 2, 3, 1, 4. Let's say that 2, 3, 1, 4. That's a square matrix of order 2 by 2, and that theorem is there only for square matrix. ये तो तय बात है. 2, 3, 1, 4 that square matrix is there. Characteristic equation is written as determinant of A minus lambda I is equals to 0. When I say A minus lambda I and that determinant is equals to 0, that's a matrix of order 2 by 2. A minus lambda I unit matrix must also be a matrix of order 2 by 2. There is definitely some reason, that is the only reason that I am discussing that theorem here, which is already I have mentioned that is not there in the syllabus. तो A minus lambda I जब मैं करूँगा तो वो determinant जो बनेगा वो बनेगा 2 भाई I क्या होगा, I you are going to take as the square matrix, unit matrix 1 0 0 1. So it is 2 minus of lambda. It is 3 1 4 minus lambda is equals to 0. That determinant is equals to 0. Simple. Determinant of A minus lambda is equals to 0. Determinant solve करना आप जानते हैं बखूबी. 2 minus lambda into 4 minus lambda minus of 3 equals to 0. It is becoming lambda square, it will be minus 4 lambda minus 6 lambda plus 8 minus 3 is equals to 0. So it is lambda square minus 6 lambda plus 5 equals to 0. दोस्तों it is nothing but the characteristic equation. सिंपल सी बात है. Determinant of A minus lambda is equals to 0. That is the characteristic equation, and according to the theorem, केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, which means that बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, A स्क्वायर माइनस ऑफ 6A प्लस 5I is a null matrix. Square matrix satisfies its characteristic equation, which means that lambda has been replaced by A. So it is A square minus of 6A plus 5. But 5 by matrix के term में लिख रहे हो तो 5 will become a scalar value. तो 5I is equals to, we are not going to say 0, null matrix then. So A square minus of 6A plus 5I equals to null matrix. That is the theorem. हर square matrix अपनी characteristic equation को satisfy करता है. क्वेश्चन हो सकता है कि देयर माइट बी मैट्रिक्स इज गिवन एंड फ्रॉम 4 ऑप्शंस आर गिवन. सुनिएगा इस बात को, 4 ऑप्शंस आर गिवन. अब एक तरीका हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस तो इसलिए नहीं कह सकते उस क्वेश्चन को कि भाई आप नॉर्मल प्रोसीजर से निकाल सकते हो, A इंटू ए किया तो A स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा. लेकिन अगर ये आइडिया आपको, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट पे टिक मारोगे, और ऐसा आ सकता है क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देना है, तो बहुत हेल्प कर सकता है और किया है. मैं ये भी बात कहूँगा. अब जैसे मान लो कभी कभी ये होता है कि A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 5Y इक्वल्स टू 0 एंड यूजिंग दैट इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स. बता देते हैं आपको वैसे ही. इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे A इनवर्स फाइंड आउट करना है.
देख लीजिएगा। तो ए इनवर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, पहली बात तो समझ में आया कि व्हाट इज दैट थ्योरम इज, सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो दैट इज, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2, देन ए माइनस लेमडा आई, उसको सॉल्व किया, फाइन। अब मुझे ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, मान लीजिए यूजिंग दैट इक्वेशन, तो क्या किया, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, इसी इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन किया। यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ नल मैट्रिक्स। नाउ इट इज ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो, और ए इनवर्स इंटू ए को मैं आई लिख सकता हूँ, और आई इंटू ए को मैं ए लिख सकता हूँ, तो परेशानी तो नहीं होगी आपको। फाइनल स्टेजेस में अब जा रहे हैं हम लोग, तो ए माइनस ऑफ 6i प्लस 5a इनवर्स इज अ नल मैट्रिक्स, क्लियर? सो ए इनवर्स विल बिकम 6i minus of a divided by 1/5. 6i minus of a divided by 5, that is going to be the a inverse। आप क्या करोगे, यूनिट मैट्रिक्स लोगे, 6 से मल्टीप्लाई किया 6006 माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिवाइड करिएगा उसको 5 से, विल बी गेटिंग ए इनवर्स। समटाइम्स इट पॉसिबिलिटी है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या किया हमने। Now the question is, A is a matrix, the square matrix of order 3 by 3 given to you is 1 0 0 0 1 1 0 minus 2 4. One matrix equation is given as A inverse is 1 by 6 of A square plus CA plus D into a unit matrix। C and D are some scalar values, और आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ C and D, C और D की वैल्यूज पूछी गई हैं। सम ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ 6 11 minus 6 minus 11 minus 6 11 6 minus 11। That's the previous year JEE screening question in the year 2005 it was asked। तो जो मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज व्हाट, दैट इज ए इनवर्स इज 1 by 6 ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी ए इंटू डी आई। ठीक है, और आपको सी और डी फाइंड आउट करना है। सो वन ऑफ द अप्रोच कुड बी, जो एक अप्रोच हो सकती है वो ये अप्रोच हो सकती है कि यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। सोचिए जरा, यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लें तो ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 6 टाइम्स ए स्क्वायर, दैट ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए। सो यू हैव टू गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ए, देन ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद सी प्लस यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद द डी। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन में है दैट इज ए इनवर्स, वो ए इनवर्स लिखा आपने, फाइंड आउट किया इनफैक्ट। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई फाइंड आउट किया, उससे 6 को डिवाइड किया, 6 से डिवाइड कर दिया उसको, और फिर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे और तभी इक्वेशन बनेगी सी और डी के टर्म में, और तभी आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि लंबा हो गया कार्यक्रम, क्योंकि पहले ए का इनवर्स निकालो तो ए इनवर्स आएगा, देन ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, देन सी ए प्लस डी आई, और फिर सबको ऐड करो और 6 से डिवाइड करो। जितनी आसानी से बोल दिया उतनी आसानी से तो नहीं बनने वाला वो। ऑल द एलिमेंट्स थोड़े सिंपल दिख रहे हैं लेकिन टाइम तो लगेगा, तो तय बात है। तो आउट ऑफ सिलेबस इट्स नॉट अ क्वेश्चन आउट, क्यों नहीं बन सकता नॉर्मल अप्रोच से। एक और अप्रोच की जा सकती है इसमें, और वो ये कि ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपको सी और डी पूछा है, तो वो कह सकता है आपको, जो अपने दिमाग में आता है सर ऐसा कर सकते हैं कि एक तो ये हुआ कि ठीक है हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। दूसरा ये हुआ कि ए इनवर्स इज देयर, तो ए से मल्टीप्लाई कर लिया। जो आइडियाज अपने दिमाग में आते हैं उनको तो सोचे हम कि क्या क्या हो सकता है।
ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इंटू ए विल बिकम ए क्यूब, सी इंटू ए स्क्वायर, एंड यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए दैट विल बी ए। ठीक, ए इनवर्स इंटू ए विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स। अब इस तब भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, 6 को i से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6i हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, इनवर्स तो मुझे नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन ए स्क्वायर और ए क्यूब ये फाइंड आउट करना होंगे, ऐड करना होंगे उनको, तभी तो आप इक्वेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और तभी आपको सी और डी के टर्म में इक्वेशन बन के, समझ रहे हो क्या क्या बताया जा रहा है। So it could also be one of the approach, but for that you will have to find out a square as well as a cube and then you will have to add, उनको एडिशन करो और फिर आप कंपेयर करो, तब रिजल्ट आएगा। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट वन मोर अप्रोच कुड बी देयर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने क्या किया यहाँ पर कि ये फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इक्वल्स टू 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग द केले हैमिल्टन थ्योरम। कहीं क्लिक करता है हमको और हम उसके थ्रू बात करते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी a माइनस लेमडा आई 1 माइनस लेमडा 0 0 0 0 1 माइनस ऑफ लेमडा 1 माइनस 2 4 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। फाइन, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में परेशानी नहीं, इधर 0 इधर 0, कहाँ दिक्कत है। 1 माइनस लेमडा, फाइन, मल्टीप्लाई कर लो, यू आर गोइंग टू गेट अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लेमडा। कैन यू टेल मी द क्यूबिक इक्वेशन प्लीज? क्यूबिक इक्वेशन बता पाएंगे आप? मल्टीप्लाई तो करना होगा आपको, यू विल हैव टू टेल मी द इक्वेशन। लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, ओके, माइनस 11, ओके, माइनस 11 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ये तो मल्टीप्लाई किया हमने, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो इट इज गोइंग टू बी a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 11a प्लस 6i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक, अपना काम तो परफेक्ट हो गया, यहां पर दिख रहा है जो आपको साफ साफ, ये 6i प्लस माइनस की कहीं कोई एरर तो नहीं है, उसको जरा चेक कर लीजिएगा बस, इट्स ओके। पक्का, ओके। तो a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 6i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मुझे a इनवर्स ये इक्वेशन गिवन है, और एक और आइडिया मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए जब सॉल्व किया था तो a से प्री मल्टीप्लाई करके मैंने एक इक्वेशन और बनाई थी। तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो 6i इज कमिंग एज दैट 6i इज कमिंग एज माइनस ऑफ a क्यूब माइनस ऑफ 6a स्क्वायर प्लस 11a, ठीक है। सो यहां पर जब मुझे सॉल्व करना होगा, इट इज नॉट कमिंग एज a क्यूब, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ एरर तो नहीं है इसमें। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, दैट कहीं कुछ एरर है इसमें सॉल्व कर। एक बार देख लीजिए प्लीज कि क्या इक्वेशन आ रही है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया है, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, क्योंकि इससे मैच होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो इससे मैच करा रहा हूँ मैं, तभी तो मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिख दूंगा। आई जस्ट वांट द मल्टीप्लिकेशन करेक्टली। माइनस लेमडा क्यूब माइनस, वो ठीक है, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इज दैट ओके? सो इट विल बी माइनस ऑफ a cube here, minus of a cube plus 6a square minus 11a plus 6i equals to null matrix,
So 6i can be written as a cube minus of 6a square plus 11a. मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लीकेशन करके जब सॉल्व किया था तो ये 6i इज इक्वल्स टू, बोले सर आपको क्यों लग रहा था कि गलत है? क्योंकि इधर से इक्वेट होना चाहिए ना, वो ए क्यूब तो इधर भी ए क्यूब ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर है कहीं ना कहीं। तो ए क्यूब आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से लिख के आओगे कि सी की वैल्यू -6 है और डी की वैल्यू 11। कितना आसानी से हो गया, यहाँ ना ए स्क्वायर निकालना पड़ा, ना ए क्यूब निकालना पड़ा, ना ए इनवर्स निकालना पड़ा, कुछ नहीं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसमें ए सेटिस्फाई करेगा, कर दिया एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। बोले सर इक्वेशन तो ये थी तो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से इसमें अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता तो ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देता, प्री मल्टीप्लिकेशन। आ रहा है क्या समझ में? तो दैट इज द ओनली रीजन दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। दैट वाज द क्वेश्चन इन द ईयर 2005 स्क्रीनिंग दैट वाज आस्क्ड एंड यूजिंग द केले-हैमिल्टन थ्योरम ये बहुत आसानी से बन गया था। अब उसने तो वो इट्स नॉट लाइक कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेगुलर प्रोसीजर से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमने कुछ नई बात सीखी और उसके थ्रू बना दिया। So now it's clear how to find out the characteristic equation and every square matrix satisfies its characteristic equation. Again we take a previous year JEE question in the year 2003 subjective exams, mains exams it was asked. There is a matrix, A matrix which is given to you, square matrix ABC, BCA, CAB. That is also known to be the circular matrix is there. In fact, we can say symmetric matrix is also there, na? B, B, C, C, A, A. It is a symmetric matrix. Fine, ठीक है. A, B, C are real positive numbers. A, B, C are real numbers, but positive real numbers. Then it has been given in the problem that A, B, C is given as 1, and A transpose into A is given as a unit matrix. और आपसे कहा गया you have to find out a cube plus b cube plus c cube. So you have to find out a cube plus b cube plus c cube. देखिएगा ध्यान से, दो अप्रोच से बात करेंगे, लेकिन एक बार जो a इंटू ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इंटू ए, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि a ट्रांसपोज इंटू ए दैट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a ट्रांसपोज तो a के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a ट्रांसपोज क्लियरली इक्वल्स टू a. So A transpose into A, that will be nothing but A square only. So on you are going to equate it with unit matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. करिए जरा इसको, A square. So A transpose into A is a unit matrix. So it will be A square is equals to I. You will have to tell me the elements please, है ना? हाँ, A स्क्वायर के एलिमेंट्स आपको बताना होंगे मुझे। रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट? चेक कर लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। सेकेंड रो के एलिमेंट्स बताएंगे एंड यू आर गोइंग टू इक्वेट इट विथ सेकेंड रो के एलिमेंट्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे के एलिमेंट्स क्या आने वाले हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। इट इज अगेन बिकमिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना? एंड हियर सेम है ना? देखो इस सबसे केवल एक बात जो समझ में आती है, तो हमने लिख दिया पूरा, इतना लिखने की भी शायद आवश्यकता नहीं थी। जो बात समझ में आती है वो ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? दैट वैल्यू इज सिंपली 1। जब आप इक्वेट करोगे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, दैट विल बी इक्वल टू 0। चाहते क्या हो आप? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब व्हेन ए बी सी इज ऑल्सो गिवन टू यू।
सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर आपको रिक्वायर्ड है तो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus of 3abc, there is a direct formula known to you. Yeah, you must be aware of that. A cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that is nothing but a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc, right? बड़ा भारी फॉर्मूला तो लिखा नहीं. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है. अब ध्यान से देखो, ए बी सी की वैल्यू 1 पता है आपको, दिया है तो प्रॉब्लम में. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑल्सो नोन टू यू एज 1. माइनस कॉमन लेने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो वैल्यू विल बिकम 1. ये वैल्यू 1 है, ठीक है, हो गया. आप क्या बोले सर, एक चीज दिक्कत दे रही है, क्या? ए प्लस बी प्लस सी. क्या दिक्कत है? दोनों अगर आपको अवेलेबल है तो ए प्लस बी प्लस सी अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा है? a plus b plus c whole square राइट. कौन सी बड़ी भारी बात हो गई यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. सो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस 0. सो व्हाट यू आर गेटिंग, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज 1. तो a प्लस बी प्लस सी कितना? प्लस माइनस 1 तो होगा, लेकिन हम प्लस 1 बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर दिया उसने. हो गया खत्म. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज नथिंग बट 4. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. कितना टाइम लगा? कुछ नहीं. अब ये जरूर है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा सावधानी के साथ आपने काम किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं. आपको समझ में आ गया कि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स से इक्वेट करोगे तो दो इक्वेशंस आ रही हैं कुल मिला के वहां पर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0. ठीक. और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब रिक्वायर्ड है, ए बी सी गिवन है, तो फिर कहाँ दिक्कत है? Formula is known to you. A plus B plus C is required again. That formula is again known to you. These are elementary results. ठीक. Now look for one more approach here, which you can say a shortcut there to find out the result A cube plus B cube plus C cube. देखिएगा कैसे. आपने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया कि it is symmetric matrix which is nothing but A transpose is coming as A. The equation matrix equation is A transpose into A is a unit matrix. ठीक है, that is given to you. What I have done here, I have taken a determinant both sides. ले सकते हैं. So it can also be written as determinant of A transpose, determinant of A unit matrix का determinant that is nothing but 1. A transpose और A सेम है, मैट्रिक्स भी सेम है. यहाँ पर नहीं भी तो डिटर्मिनेंट के केस में तो वैल्यू सेम रहेगी. So it is nothing but determinant of A square is coming as 1. determinant of A square is nothing but equals to 1. भाई ये तो सेम हो गया ना. A और A ट्रांसपोज जब सेम है तो it will become determinant of A square equals to 1. If you observe that matrix ABC BCA CABN, if you are having the idea, if you remember the results which I have given in the very first class of the determinants, 1 1 1 1 1 ABC A square B square C square, 1 1 1 ABC A cube B cube C cube, 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube, and the fourth result was there for circular determinant or for cyclic determinant, and that was there for ABC BCA CAB. और मैंने कहा था रिजल्ट आपको बहुत काम में आएगा. और यहां पर अगर आप देखें तो दैट सेम डिटर्मिनेंट है ना, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू यस दैट इज नोन टू यू, दैट्स ए नेगेटिव वैल्यू इन फैक्ट, एंड माइनस ऑफ यस इट इज माइनस ऑफ. जब इसको सॉल्व करते हो आप तो इट इज कमिंग एज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. जब पूरा सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को बताया था मैंने आपको, इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ दैट फॉर्मूला इज ऑलरेडी नोन टू यू. डायरेक्ट आप यही लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. और आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि जो आपसे कहा गया है कि रिजल्ट तैयार करिए तो वो तैयार करिएगा रिलेवेंट मीनिंग है.
करके रखेंगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको। आप सीधे सीधे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नहीं देखोगे, आप सीधे रिजल्ट छापोगे, ठीक है। आपको तो भले बोले सर पता है हमें, तो ये रहा माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज 1, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। इफ यू टेक द स्क्वायर रूट तो दैट विल बिकम प्लस माइनस 1। एबीसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 1, और एक छोटी सी बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बोले सर ये +1 ले या -1 ले, y +1, y +1, यू आर गोइंग टू टेक +1, बोले सर रिजल्ट 4 आ रहा था इसलिए प्लस ले लेना। बोले सर प्लस लोगे तभी तो आप 4 आएगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा सर। y प्लस पॉजिटिव रियल नंबर तो दिए तो अच्छी बात है, बट हाउ कैन यू डिसाइड दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन 3abc, ये कैसे पता आपको? बोले कर जाना है नहीं, वो तो ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को वाई शुड बी टेक एज +1, यूनिट मैट्रिक्स के नहीं, ये तो अभी हम सॉल्व कर लिया हो, तो डिटर्मिनेंट तो 1 आ रहा है, प्लस माइनस 1 है, स्क्वायर है। एक बात ध्यान रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्लास 11th में इनइक्वालिटीज के बारे में जब आप पढ़ते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी गिवन है, तो इन दैट केस आई टेक अ सेपरेट क्लास फॉर दैट, कभी जरूर लूंगा मैं, दैट इज एम इज ग्रेटर, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कैलकुलस एज वेल एज फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स, एंड आई टेक अ सेपरेट क्लास फॉर दैट एम 11th में बताया गया था, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब divide by 3 is greater than equals to cube root of a cube plus b cube plus c, that is abc. Now you can definitely say that a cube plus b cube plus c cube is greater than equals to 3abc. So that result is can never be negative, negative हो नहीं सकता, you will have to take it plus sign only using the inequality am greater than equals to gm. बोले सर ये तो उससे लंबा हो गया, लंबा नहीं हुआ एक्चुअल में, क्योंकि ये तो रिजल्ट आपको पता है, मैंने सॉल्व करके बताया, इसलिए रिजल्ट्स आपको पता है, आप सीधे सीधे रिजल्ट लिख के आओगे, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिक्स और फिर कुछ फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे होगा।